Hello students, this is Umesh Kumar Meena, your English teacher for class 4. I welcome you all in class 4. As you can see on your screens, we are starting our English class with unit 1. It has two topics. The first topic is a poem. The name of this poem is Wake Up, and the another one is a chapter. The name of this chapter is Neha's Alarm Clock. So students, we will do Neha's Alarm Clock in our next video. Now we are moving with the first poem. The name of this poem is Wake Up. Before starting this poem, I want to tell you one thing. Students, you have to make a separate copy for English, and you have to do all the given work in that copy only. Now we are starting our poem. Now first of all, what does wake up means? Students, wake up means to stop sleeping or to become awake after sleeping. इट मीन्स जब आप सो करके उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, तो जाग जाने को हम क्या बोलते हैं? वेकअप. वेकअप मीन्स टू स्टॉप स्लीपिंग और टू बिकम अवेक. वेकअप मीन्स बिकम अवेक. यस. So students, as you know, we are under lockdown these days, and we all are not getting up early in the morning, and we are missing a lot of things. We used to get up early in the morning when our school was open. जब हमारा स्कूल ओपन था तो हम लोग बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, एंड बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखते थे. नाउ वी आर मिसिंग ऑल दोज थिंग्स. कैन यू गेस व्हाट आर दोज थिंग्स दैट वी आर मिसिंग दीज डेज? Yes, they are the chirping of the birds in the trees, the buzzing of the bees, the sunrise, and the cool air that we feel in the morning. So we are missing a lot of things. Now students, do you think that we are all alone who wake up early in the morning? Obviously no. We are not alone who wake up early in the morning. There are horses, the cows, all the creatures. Basically, we have a lot of creatures who wake up early in the morning, like bees, butterflies, horses, cows, and lot of creatures. यानी बहुत सारे जानवर हैं जो क्या है कि सुबह में उठ जाते हैं. So through this poem, what does this poem tells us? The poem Wake Up tells us to wake up early in the morning, to not to miss all these things happening in the early morning. तो ये wake up जो poem है हमें ये बताती है कि हमें सुबह में उठना चाहिए, हमें मोटिवेट करती है. This is motivating us to wake up early in the morning so that we will not miss all these things happening in the morning. ताकि हम ये जो चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो सुबह में हो रही हैं, उन्हें मिस ना करें. इसलिए wake up poem जो है हमें मोटिवेट करती है. So let's sing this very motivating poem. Now as I told you, the name of our first poem is Wake Up. So students, you have to sing this poem at least twice, and you all have to learn this poem also. Now I am singing this poem. You can sing with me or you can imitate me as well. आप मेरे पीछे भी गा सकते हैं, मेरे साथ में भी आप इस पोएम को गा सकते हैं. कम से कम आपको 2 बार ये पोएम गानी है. ठीक है. So let's start. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wash and dress and come on out. Everyone is up
and about. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up, wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. So students, we have sung this poem very well and I am hoping that you all have enjoyed this poem. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सभी ने इस पोएम को बहुत इंजॉय किया होगा. सो यू हैव टू सिंग दिस पोएम एटलीस्ट फॉर ट्वाइस. कम से कम आपको 2 बार इस पोएम को गाना है एंड यू ऑल हैव टू लर्न दिस पोएम एज वेल. आपको यह पोएम याद भी करनी है. नाउ लेट्स सी हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. इट मीन्स हु हैज रिटन दिस पोएम, हु हैज क्रिएटेड दिस पोएम, यानी किसने इस पोएम को रचा है. तो पोएट का नाम है सी फ्लेचर. सी फ्लेचर इज द पोएट ऑफ दिस very beautiful poem. So students, now I will explain you the meaning of this poem. Before I explain you the meaning of this poem, the gist of this poem, let us do our new words. So it will help you to understand the poem better. तो ये जो आपको हम जब न्यू वर्ड्स कर लेंगे तो आपको क्या है, ये पोएम जो है और अच्छे से समझ आएगी. सो लेट्स डू अवर न्यू वर्ड्स. Only then we will move further. Okay everyone, here I am explaining you the new words that came in the poem. So we have our first word. The first word is lovely. Pronounce it again. Pronounce it again. Yes, the word is lovely. So what does lovely means? Lovely means very pleasing. What is the meaning of this word? This word means very pleasing. वेरी प्लीजिंग मीन्स इन हिंदी कि जब आपको बहुत कुछ जो चीज़ होती है बहुत अच्छी लगती है, जिसे देख करके आप बहुत खुश होते हैं या बहुत आपको पसंद आती है, दैट इज़ वेरी प्लीजिंग. दैट मीन्स वेरी प्लीजिंग. तो वेरी प्लीजिंग होता है लवली. सो जैसे आप सुबह में उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, आपको जो बजिंग ऑफ द बीज है या फिर जो कूल एयर है या फिर सनराइज है, ये सब क्या है आपको बहुत पसंद आता है. सो यू फाइंड इट वेरी प्लीजिंग या यू फाइंड इट वेरी लवली. तो आपको वो क्या है कि बहुत प्रसन्न करता है, बहुत पसंद आता है. तो दैट मीन्स वेरी प्लीजिंग. वेरी प्लीजिंग मीन्स बहुत पसंद आने वाला या बहुत सुखद. We have another word. The word is buzzing. What does buzzing means? As I have told you just right now, the word buzzing means sound of a flying insect. So let us write the meaning. Sound of a flying insect. So what is the meaning of buzzing? Sound of a flying insect. So as we sung in the poem, the line, the buzzing bees. So buzzing bees मतलब यानी भिन भिन आने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी आवाज़, या फिर साउंड ऑफ अ फ्लाइंग इंसेक्ट यानी जो भी कीड़ा जो उड़ता है वो अक्सर क्या करता है, भिन भिन करने की आवाज़ करता है. उसके उड़ने से, पंखों से उसके भिन भिन आने की आवाज़ आती है. जैसे मधुमक्खी है या फिर घर की मक्खी भी होती है, उसकी भी आवाज़ कैसी आती है, उसके पंखों से भिन भिन आने की आवाज़ आती है. दैट भिन भिन आने की आवाज़ इज नोन एज बजिंग. सो बजिंग मीन्स साउंड ऑफ अ फ्लाइंग इंसेक्ट. तो उड़ने वाला जो भी कीड़ा है वो कैसी साउंड करता है, बजिंग साउंड करता है. वी हैव अनदर वर्ड. द वर्ड इज स्लीपी हेड. व्हाट डज स्लीपी हेड मीन्स? एज यू कैन फाइंड द वर्ड स्लीप हेयर हिडन इन दिस वर्ड. स्लीप आपको दिख रहा है ना, स्लीप मतलब बोलता है सोना, यानी हेड मतलब हमारा सर. ठीक है. सो स्लीपी हेड मीन्स अ स्लीपी पर्सन. इट मीन्स एक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो क्या है कि काफ़ी सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है. अ स्लीपी पर्सन. सो वी कैन राइट द मीनिंग ऑफ स्लीपी हेड हेयर. ए स्लीपी पर्सन, a person who sleeps more, या who sleeps. So
स्लीपी हेड मीन्स ए स्लीपी पर्सन, यानी बहुत अधिक सोने वाला व्यक्ति इज नोन एज स्लीपी हेड. वी कैन से ओ यू आर अ वेरी स्लीपी हेड, you are a sleepy head, you are such a sleepy head. We can say Amit you are such a sleepy head, यानी अमित तुम बहुत ही ज़्यादा सोने वाले लड़के हो. तो एग्जाम्पल ये था. tiniest, tiniest होता है very small. what does tiniest means? tiniest means very small. So I'm facing difficulty while writing here very small. Okay, so tiniest means very small. Let us just take an overview of these words. The first word is lovely. The meaning of this word is very pleasing, बहुत सुखद. buzzing, sound of a flying insect, यानी एक उड़ने वाले इंसेक्ट का जो भिनभिनाने का साउंड होता है वो. sleepy head, यानी a sleepy person, यानी बहुत ज़्यादा अधिक सोने वाला पर्सन को हम क्या बोलते हैं? sleepy head. as I gave you an example. Now the word is tiniest. tiniest means very small, यानी बहुत छोटा. ठीक है, जैसे tiniest chicken, यानी छोटा सा जो चिकन होता है, चूजा होता है, वो बहुत छोटा होता है. ठीक है, तो tiniest means very small. So we have done our new words here. Now I will explain you the meaning of this poem. So students, we have done our new words and now it will be easy for us to understand the meaning of this poem. Now we are going to understand what this poem is trying to convey, कि यह पोएम जो है वह क्या कहना चाह रही है. सो फर्स्ट लाइन है वेक अप, यानी अब आप जग जाइए. यू हैव टू वेक अप और स्टॉप स्लीपिंग. इट्स अ लवली डे, कि बाहर देखिए कि कितना अच्छा दिन है. लवली, एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेरी प्लीजिंग, यानी बहुत सुखद दिन है. बाहर आइए और देखिए बहुत सुखद दिन है, उठ जाइए. ओ प्लीज गेट अप, यानी अब आप खड़े हो जाइए. एंड कम एंड प्ले. गेट अप इज सिमिलर टू वेक अप. ठीक है, गेटअप वो जो वर्ड है वो क्या है? वेकअप के सिमिलर है, बहुत सिमिलर साउंड करता है. लेकिन वेकअप का मतलब है जाग जाना और गेटअप का मतलब है उठ जाना. यानी आप बैठे हैं, आप उठ गए, लेकिन आप सो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? वेकअप करेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. एंड कम एंड प्ले. सो व्हाट डज कम मीन्स? कम यानी आइए, वर्ड प्ले मतलब खेलिए, यानी आप बाहर आइए और अब आप खेलिए. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज. बर्ड्स मीन्स क्या होता है? बर्ड्स मतलब क्या होता है? बर्ड्स मतलब पक्षी. सिंगिंग मतलब गाना या चहचहाना है. इधर यहाँ पे जो पक्षी हैं उनके चहचहाने से मतलब लिया गया है. ट्रीज का अर्थ होता है पेड़. तो जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं? पेड़ों के अंदर में चहचहा रहे हैं, पेड़ों में बैठे हैं, पेड़ों की डाल पर बैठे हैं. एंड दे आर चिरपिंग, दे आर सिंगिंग. नाउ एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. Hear, what does hear means? H-E-A-R. Hear means to listen, यानी सुनना. अब आप सुन सकते हैं क्या? जो मक्खियां हैं उनकी जो गूंजन है, जो वो भिनभिनाती हैं, उस वॉइस को भी, वो भी बहुत अच्छी लगती है. वो एक तरह से सुबह में जब ठंडी हवा चल रही होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, तो बहुत सुंदर मौसम लगता है. बजिंग ऑफ बीज. सो एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ बजिंग. द मीनिंग ऑफ बजिंग इज साउंड ऑफ अ फ्लाइंग इंसेक्ट, यानी एक किसी भी उड़ने वाला जो कीड़ा है उसका क्या है? जो भिनभिनाने का आवाज होता है बजिंग, उसे बोलता है. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? बजिंग बीज, यानी बीज के, यानी मक्खियों के भिनभिनाने के आवाज. तो बेसिकली मक्खियां जो है मधुमक्खियों से लिया गया यहाँ पे. मतलब नाउ क्या बोला है? वेकअप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. तो सेम बात बोलिए कि आप उठ जाइए, देखिए कितना अच्छा दिन है, प्लीज कृपया करके आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए, उठ जाइए. एंड कम एंड प्ले, आइए बाहर आइए और खेलिए. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. टू लेट मतलब यानी बहुत देर हो गई. लेट मतलब होता है देर हो जाना. टू लाई इन बेड. लाई यानी लेटे रहना, पड़े रहना. किसमें? इन बेड, यानी बेड में पड़े रहना, अपने बिस्तर में पड़े रहने को हम बोलेंगे लाई इन बेड. सो हरी अप यू स्लीपी हेड, यानी हरी अप मतलब, हरी अप क्या होता है? हरी अप का अर्थ होता है तेजी से. ठीक है, जल्दी कीजिए. सो हरी अप यू स्लीपी हेड, यानी आप सोते रहने वाले बच्चे जल्दी करिए और उठ जाइए, अब आप सोइए नहीं. सो यहाँ पे कहा गया है कि अब आप अपने बिस्तर में मत पड़े रहिए, आइए जल्दी कीजिए और आप उठ जाइए. तो वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, यानी जब भी हम whenever we wake up in the morning, we first of all the first thing we do is to wash our face, यानी जो भी हम जगने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, क्या करते हैं? मुंह धोते हैं जाके. तो क्या बोला गया कि वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, यानी आप थोड़ा सा अपना मुंह वगैरह धो लीजिए, कपड़े पहन लीजिए और आइए बाहर आइए. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. देखिए कि सब, एवरीवन यानी प्रत्येक, हर कोई जग चुका है,
एंड अबाउट यानी जगने वाला भी है, कुछ लोग अभी क्या है जग ही रहे हैं धीरे धीरे। देखिए द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप। काउ होती है गाय, हॉर्सेस घोड़े, डक्स बतख एंड द शीप यानी भेड़े। तो देखिए गाय, घोड़े, बतख और शीप जो है वो भी जग चुके हैं। द टाइनीएस्ट चिकन चीप 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 यानी जो टाइनीएस्ट, व्हाट डज टाइनीएस्ट मीन्स, वेरी स्मॉल। तो देखिए जो छोटा सा चिकन है, जो चूजा है, इवन वो भी जग गया है। तो अब आपको भी जग जाना चाहिए। जब छोटा सा चूजा जग चुका है तो आप क्यों नहीं जग सकते हैं। सो जो टाइनीएस्ट चिकन है, जो चिप 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 करके चिल्लाता रहता है, वह क्या है, वह भी जग चुका है। सो वेक अप यानी अब आप उठ जाइए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड the poem for you. Now I'm giving you some work. You have to do some work. So first of all देखिए आपका हर दिन का काम जो आपको करना है स्टूडेंट्स, वो आपको क्या करना है कि आपको एक पेज हर दिन राइटिंग लिखनी है। जिस भी पेज की राइटिंग आप लिखेंगे उसी पेज को आपको रीड भी करना है। क्या फायदा होगा इसका? इसका फायदा होगा एक तो आपकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एंड इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल। Basically the speaking English as well. It will make your pronunciation very clear. जो आपकी pronunciation होगी वो बहुत clear हो जाएगी, बहुत साफ हो जाएगी, स्पष्ट शब्द होंगे और क्या है कि अंग्रेजी की लिखावट भी लिखने से बहुत अच्छी होगी। तो हर दिन आपको एक पेज राइटिंग लिखनी है, हर दिन आपको एक पेज इंग्लिश पढ़ना है और साथ में ये तो आपको हर दिन करना है। यह बिना बोले ही आपको हर दिन करना है कि हर दिन राइटिंग लिखनी है, हर दिन आपको एक पेज इंग्लिश पढ़ना है, ये हर दिन करना है आपको। साथ में जिस भी पेज का राइटिंग और जिस पेज का आप पढ़ेंगे उस पेज के जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपको क्या है कि लिख लेने हैं या फिर अपने बुक में अंडरलाइन कर लेने हैं। और अंडरलाइन करने के बाद यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स बाय यूजिंग अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी को यूज करते हुए उसके जो भी डिफिकल्ट शब्द होंगे उनका अर्थ आपको एक डिक्शनरी से ढूंढना है और उसको लिख लेना है। तो जब भी हम स्कूल में मिलेंगे हम लोग आपका यह काम चेक करेंगे। तो यह आपका आज का काम है। तो अभी आपको क्या करना है, इस पोएम को यू हैव टू सिंग दिस पोएम एटलीस्ट ट्वाइस, यू हैव टू लर्न दिस पोएम एंड यू हैव टू राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू फाइंड द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम एंड हैव टू राइट दोज इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स ऑल्सो। तो जो भी आपको क्या करना है, इस पोएम को लिखना है। पोएम लिखने के बाद में जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखने के बाद डिक्शनरी से उसका अर्थ फाइंड करना है। अभी के लिए आपका यह काम है। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रीडिंग इज फन ऑफ this poem. So here is the reading is fun. We will do the reading is fun and the other things in our next class. Till then, goodbye and stay safe, stay home.